So, hello everyone. Myself, Aditya Anare. I am an Indian and I am ashamed of being an Indian. कहने के लिए तो हम नंबर वन डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, बट वी नो वेयर वी आर. चांसेस आर हाई कि आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर ऑल्सो एन इंडियन. डू हैव 100% ऑफ कॉन्फिडेंस कि you can have a debate watching in the eyes of someone who belongs from America, Switzerland, Indonesia, US, Dubai. You can have a debate with them that my country is better than your country. Can you? No, you cannot, because you know only an Indian knows how it feels to be in India. Population, what is the experience of trains and buses, what is the experience with the teachers, government officials, cops, what is the experience with politicians, corruptions, religion. इस वे में religion के अलग ही, लाइक इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो कि खुद को बस अपने पास्ट अकम्पलिशमेंट के ऊपर प्रेजेस करते जा रही है. आप लोग कमेंट्स करते हो, माई कंट्री गेव वर्ल्ड दिस, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम माई कंट्री, my country gave zero to world, my country gave this to world, they gave yoga to world. Are you fucking doing even yoga? Do you meditate daily? What do you think? Most of the Indians तो हंसते हैं meditations के ऊपर. Meditations, yoga, they think अरे क्या तुझे बाबा बनना है? They say this thing, and how you expect our country to grow exponentially अगर हम खुद अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते. Yoga, meditation was the thing given by India to the world, yoga. But most of the Indians, yoga का vibe भी उन्हें ठीक से नहीं पता है. They don't even know meditations, they don't even know yogic practices, kriyas. They laugh at these sadhanas, japas, mantras at our own culture. There are very rare Indians जो कि उन्हें respect करते हैं, and those who respect, they are on a high level. फिर बाद में cleanliness, what a topic. Cleanliness in India, wow. Whole India has been mocked by the world outside just because of the uncleanliness India have. इतनी ज़्यादा लेवल पे गंदगी. लाइक कभी ट्रेन में, कभी आपने जनरल बोगी में ट्रैवल किया है? ट्रेन्स में इफ़ यू दैट मच प्रिविलेज कि आपने ट्रैवल नहीं किया है ना, तो एक दिन ट्रैवल करके देखो. ट्रेन्स आपको समझा देंगे व्हाट इंडिया इज़. People will give you everything, still you cannot respect the Indian property. वो ट्रेन्स की जो बैंड बजती है, जो कुशन्स फाड़े जाते हैं, टॉयलेट्स मैन fucking disastrous. Train toilets are fucking disastrous. Then the people spitting in the trains, सीट्स के नीचे अपनी विमल की पूड़ियाँ छुपा देना, plastic bottles all over the train, पूरे ट्रेन में plastic bottles. If an American is traveling in India and if he sees कि वो इस ट्रेन में चढ़ा है and his seat is over there and his seat का जो जाने का रास्ता है, जो पाथवे, उसमें ही पाथवे में 10 लोग पहले से बैठे हुए हैं, what do you think, what will the first image comes to their mind of India? No, people, आप you as Indian, you're just coping that my country is good, my country is this, my country. No, एज द कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा गॉड्स को माना जाता है, सबसे ज़्यादा गॉड्स को प्रे किया जाता है, देन वाई आवर कंट्री इज नॉट क्लीन? देन लाइक मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने गॉड्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो. आप कोई भी रिलीजन के हो, यू आर डिसरेस्पेक्टिंग योर गॉड. इफ गॉड्स लिव इन इंडिया, डू यू थिंक दिस सुप्रीम बीइंग will live in this shitty country? एंड आई थिंक इवन दिस थिंग इज ट्रू कि शिवजी भी इसी वजह से क्लीनलीनेस देख के इंडिया छोड़ के पर्वत पे चले गए. एटलीस्ट देयर इज क्लीनलीनेस. ये गंदे इंडियंस का तो टच नहीं है वहाँ पे. इंडियंस में कितने प्रॉब्लम निकाल सकता हूँ मैं, कितने. फिर बाद में लड़कियों के ऊपर मोलेस्टेशंस होना, केसेस होना, फिर बाद में उनको गंदी तरह. आई सी माई खुद के आंखों से, जब मैं मेरे बिजनेस के काम बाहर करने जाता हूँ, आई सी
40 years 50 year old man staring at a girl. एक छोटी छोटी जो लड़कियां जाते हैं ना, उनकी they are staring at this small girls, how their expressions, how their lips are moving. I see this thing and it is so blood boiling, but because this thing is normalized we cannot do anything. ये भी चीज़ इंडिया में नॉर्मलाइज करना है कि ताड़ना, looking at the woman's boobs, looking at the woman's body, even she is whole covered. लाइक जस्ट सोचो, आप अपने बीवी के साथ स्ट्रीट्स के ऊपर से जा रहे हो एंड देयर आर सम अनड्रेस्ड, अनहाइजीन्ड, कुछ ऐसे टाइप के बंदे जिन्होंने 10 दिन से नहाए नहीं, दे आर लुकिंग एट योर वाइफ इन अ बैड वे, कुछ तो बोल रहे हैं अपने आपके वाइफ के बारे में. एंड यू नो वाई यू कैन नॉट इवन फाइट विद देम, बिकॉज इन लोगों को अपने आगे की या पीछे की नहीं पड़ी होती है, खुले सांड होते हैं लोग. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस इन इंडिया. कंट्री जहाँ पे गॉड्स को इतना प्रायोरिटी दिया जाता है, हर एक घर में, जहाँ पे हर एक घर में गॉड है, जहाँ पे रिवर्स को माता मानी जाती है, उसी कंट्री के रिवर सबसे ज़्यादा गंदे हैं, उसी कंट्री में सबसे ज़्यादा गंदगी है. एंड यू नो ये सब चीज़ें देख के ना, आई डोंट थिंक सो इंडिया को अगले 100 साल के, अगले 600 साल में भी इंडिया ग्रो नहीं हो सकती है, लुकिंग एट दिस थिंग्स, बिकॉज यू कैन नॉट वैल्यू वॉट यू हैव. आप में वो सिविक सेंस लैक करती है. दिस वीडियो माइट बी हर्टिंग यू अ लॉट. बहुत चुभ रही होगी आपको वीडियो, बिकॉज ये चुभने के लिए मैंने वीडियो बनाई है. इट शुड ट्रबल यू. दिस इज योर रियलिटी एज एन इंडियन. यू कैन नॉट बी क्लीन, यू कैन नॉट बी गुड. आप बस लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज, सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, सो मेनी ऑफ द वैल्यूज टू टेक फ्रॉम हिम. इज आइडल जिसे आप अपना एपिटोम समझ सकते हो. छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ मैन विद अ विजन, वॉज अ मैन विद अ पर्पज. आप उनके बर्थ डेट के ऊपर 19 फरवरी को यू डांस इन देयर जयंतीज. आप उनके मिरनोक्स में डांस करते हो, यू डू एवरीथिंग. कांट यू आइडलाइज देम? कांट यू टेक देयर वैल्यूज? डू यू थिंक इवन महाराज वुड बी हैप्पी looking at ourselves from the sky and saying like, these are the people I fought for, this is the youth I was looking my Swaraj to be free? And in same way, Maharana Pratap, Ashoka the Great, do you think they have fought to look at us at this state? No. According to me, अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी एक्शन लेने का, कुछ तो चेंज लेने का मन कर रहा है, I would give you the best solution. अपने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो एंड इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड्स, बिकॉज बाय दैट यू आर इम्प्रूविंग योर पेरेंट्स स्टैंडर्ड. आपके आने वाली जो जनरेशन, आप उसकी भी स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो. सो स्टार्ट डूइंग दिस, ओनली दिस. एंड आई विश एवरी इंडियन शुड डू दिस, कि आप अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाना स्टार्ट करो. अपनी बाइक के ऊपर अपनी वाइफ पीछे बिठा के, फिर बाद में अपने 3 बच्चे बीच बीच में घुसा कर चौपाटी के ऊपर पाव भाजी खाने जाना, देन आते आते कोल्ड ड्रिंक पीना, एंड देन घर पे आकर ओ दिस वाज माई डे आउट. डोंट नॉर्मलाइज दिस थिंग्स. इंडिया में जो हैप्पीनेस का ग्राफ ही है, वही इतने लो लेवल पे आके स्टॉप होता है. योर स्टैंडर्ड्स आर ओनली नॉट राइंग. इफ योर स्टैंडर्ड्स राइज, if your standards rise, you yourself will understand this thing कि आप खुद में ही चेंजेस दिखने लगे. You will start to stay clean, you will start to wear good clothes, you will start grooming yourself. बहुत से ज़्यादा चेंजेस हो गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए. So I wish I don't feel ashamed of being. And sadly, by ending this video, myself Aditya Nare, I still feel ashamed of my country.